آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے، رسول خدا کے دشمنوں کی پسپائی تکوں کی مانند تھی، جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بگے دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم میں کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گیوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرما اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلنگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے۔ فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلد کی پہنچنا چاہتے ہوں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب اب میں نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے، جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قرظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراد دے رکھی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ الفسا کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے، اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین بن یحییٰ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی پر شمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدائے بہودہ کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں بیچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے۔
से मदीना में आने का मौका अब मिला है। फिर इसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा, उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना काब? मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं। हमें मोहम्मद के नए मजहब को यहीं पर खत्म करता है, वरना मोहम्मद हमें खत्म कर देगा। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेजी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी ने, जो मुअम्मर था, कहा, हमें उसके आगे बांधना है, इसे रोकना है। लेकिन कैसे? काब बिन असद ने पूछा। कत्ल? मुअम्मर यहूदी ने कहा, मोहम्मद का कत्ल ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा, तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद के कत्ल में नाकाम हो गया तो बन्नू क़ीनक़ा और बन्नू नज़ीर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह कत्ल किया है और इनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं, वो ना भूल। खुदाए बेहुदा की किस्म। मुअम्मर यहूदी ने कहा, मेरी अक्ल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और उलैस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लैस बिन मोशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बन्नू कर्जा का सरदार हूं, तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूं जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि इस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना यूहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लैस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा ना होगा? यूहावा ने कहा, इस बात में इस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है। हम इस बूढ़े जादूगर को कहां से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यही हैं। बूढ़े यहूदी ने कहा, हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गफान और उनके दूसरे कबाइल इस्लाम का नाम वो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने उन्हें मदीना पर हमला के लिए उकसाया था, वो यहां से भी भाग निकले। खुदाए बेहुदा की किस्म। काब, तुमने मुसलमानों पर अकब से हमला न करके बहुत बुरा किया है। मैं उसकी वजह बता चुका हूं। काब बिन असद ने कहा, वजह सही थी या गलत? मुअम्मर यहूदी ने कहा, वक्त हाथ से निकल गया है, अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। उसने यूहादा से कहा, लैस बिन मोशान को बुलाओ, दूसरे को अभी बाहर रखो। यूहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो इसके साथ लैस बिन मोशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी। इसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। इसके चेहरे का रंग सुर्ख व सफेद था। इसने ऊंट के रंग की कबा पहन रखी थी। इसके हाथ में लंबा असा था जो ऊपर से सांप के फन की तरह तराशा हुआ था। लैस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शोबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। इसके मुतालिक बहुत सी रवायात मशहूर थीं, जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता, और वो किसी भी मर्द औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता था। यहूदी उसे अपना प्रोमुर्शिद समझते थे। वो जहां दीदा और आलम फाजिल शख्स था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब उसकी तज़ीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठे। खानदान मोशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं।
काब बिन असद ने कहा, खुदाए बेहुदा की किस्म, हम में से कोई भी आपको यहां बुलाने की जरत नहीं कर सकता था। यूं हवा शायद आपको ले आई है। मैं पैगंबर नहीं। काब बिन असद। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और तज़ीम व एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई ना बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त ज़ाय कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर लिया है जो तुम्हें करना चाहिए था। मुअज़्ज़ज़ मोशान काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई अक़दाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद के कत्ल जैसा खौफनाक इरादा करते भी तो युहावा को इस्तेमाल न करते। हम इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम फरामोश कर बैठे हो कि सारी दुनिया पर खुदाए बेहुदा की हाकमियत होगी? दाऊद के सितारे की कसम, अपनी नौ इंसान पर बनी इसराइल की हाकमियत कायम करने के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमें इंसान की फितरी कमजोरियों को अपने हाथ में लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि मर्द किया चाहता है? आला नस्ल के घोड़े और गुलाम युहावा के साथ खड़े कर दो। किसी से भी कहो कि उसे जो पसंद है वो ले जाए। दाऊद के सितारे की किस्म, वो आदमी हैं घोड़े और मैं गुलाम छोड़ देगा और युहावा को ले जाएगा। इस महफिल पर खामोशी तारी रही। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके। लैस बिन मोशान ने कहा, तुम्हारे दिमागों में अपनी बेटियों की इस्मत समाई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो। इस्मत का शर्म व हया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो हमें अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बदी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूं। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब तुम दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुंचाने की बात करोगे तो बदी व नेकी के मानी बदल जाएंगे। मोहम्मद बुराई और बदी को खत्म कर रहा है। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रोए जमीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपनी गुलामी के जहन्नम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ। उन्हें जन्नत की हूरें दिखाओ, उन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, इनमें और ज्यादा हैवानियत पैदा करो। ये मत सोचो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये देखो कि यहूदियत की हाकमियत के लिए क्या अच्छा है, खा वो बुरा ही हो। उसने युहावा की तरफ देखा और बोला, नहीं बताओ। युहावा उन्हें समझाओ। युहावा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कहानी सुना दी। ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। युहावा ने शर्म व हिजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालारों खालिद, उक्रमा और सफवान को अपने हसन व जवानी के तिलिस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। इसने उन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन इनमें कोई भी इसके हाथ न आया। इसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। युहावा ने कहा, उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है उक्रमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंग और जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। युहावा मायूस न हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखीं। खालिद से इसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि इसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम को मैदान जंग में अजंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज युहावा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। इसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनोमंद आदमी भी पांव जमा कर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा निगाह रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं।
अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेजी से आई और उन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को इस दीवार ने निगल लिया। फजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठकर कुश्ती में पड़ती और कुश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकराकर वहीं इकट्ठ होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहां रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और उसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, यूहावा ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए झक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड़े आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहम व करम पर अलिफाड़ जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना अब भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पिए गड़े में चले गए या दूसरी तरफ के पिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका पहलू के बिल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी ना गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लुढ़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियां खाई गई। संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जनानों और उसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे कूदते। ताका मैं तन्हा न रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं पैना थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम न था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पांव जमते नहीं थे। यूहादा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चैख बहुत ही बुलंद और ड्रोनी हो गई। यूहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतीली मिट्टी की दीवार थी। यूहावा इस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई। ये निशेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और छोटे छोटे सहराई दरख्त भी थे। यहां आंधी की चैख ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चला रही हों। बाज चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी। ये इंसानों की भी नहीं लगती थी। वो चुड़ैलों और दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो इसे इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई इसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं प्यास से मरता है। इसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। इसकी दहशत ज़दगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि यूहावा रुककर पीछे हट आई। अब उसे शक न रहा, ये ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। यूहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चैख पैदा कर रही थी। यूहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। इसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है।
कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। इसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन इसने अंदर जाने की जुर्रत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ। इसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। यूं हवा की बेइख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो इस ऊंट से बाहर निकली, आंधी ने इसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। यूं हवा घबरा कर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। वो तुम औरत हो? इस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। यूहादा ने अपना चारा ओढ़नी में छुपा कर कहा। उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो? इस आदमी ने कहा। तुम उनसे अलग होकर उधर क्यों आई थी? नहीं, उधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। यूहावा वहां से ना हिली। इस आदमी ने इसे 3 बार कहा कि वो उन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन यूहावा की जबान बंद हो गई थी। इस आदमी ने झपटा मारकर यूहादा की ओढ़नी खींच ली। तुम इस यहूदी की बेटी हो? इस आदमी ने पूछा और यूहावा के बाप का नाम लेकर बोला।